Very good morning. Very good morning, students. So today we will see about food packaging. So I would like you all to unmute and tell me what you would see when you buy a product. कि आप लोग एक प्रोडक्ट लेते हो तो क्या क्या देख के आप लेते हो? Yes, Baby Shah ji, unmute करके please tell me what will you see? Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Very good morning, Baby Shah ji. Yes, tell me what will you, when you go to a supermarket or to any provision shop or anything. Yes, ma'am. Yes, what ma'am. will you see? हम लोग मान लीजिए Price. किसी this is a supermarket, ma'am. Yes. What will you generally see when you buy a product? Ma'am, Say you are buying some प्रोडक्ट में हम लोग उसका एक्सपायरी डेट, Okay, you will see the expiry date. प्राइस, Right. उसका प्राइस, Okay. और मटेरियल कैसा है. Yes. How will you know the material? How is it? How will you know? कि material कैसा है? क्वालिटी मैम. Quality, how? Without using, how will you know the quality? Yes, ma'am. Yes, Preeti, you want to say something? You can unmute and tell me, Preeti. Poonam, you can unmute. Everyone can unmute. Yes, Poonam, you can unmute and speak. Yes. सबको unmute दिया गया है. Please tell me. Yes, Preeti ji. What will you see? Any product, प्राइस, एक्सपायरी डेट, प्राइस देखते हैं मैम. Okay, it's all same. Okay. और कुछ apart from what Baby Shah has told, you have something to say? मैम ब्रांड. Brand. Okay, brand. Okay. Then what else? Yes, Anjali Soni ji, tell me. Preeti, voice is cracking. Yeah, your voice isn't clear, Preeti. Yeah. Okay. Okay. So this is what you expiry, price, material, and quality, brand. Yes, ma'am. Nothing else. Okay. So now let's proceed and know what exactly you should be seeing when you see the buy a product. Okay. Let's proceed. Right. Let's start. You can all mute yourself. Karthik sir, kindly mute everybody. Yes. Right. So, okay, all right. So let's look what. Now, Baby Shah ji said that she will look for expiry date, and Kiran Verma, Preeti, I think Poonam all said that they will look for expiry date. Before you look for an expiry date, first of all, you should see for an FSSAI license. कि क्या वो प्रोडक्ट FSSAI लाइसेंस ऐसे रहेगा. देखिए मैं दिखाती हूँ आपको. मैं यहाँ पर लिखा है यस लाइसेंस करके दिया गया है. FSSAI लाइसेंस क्या होता है? इंडिया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी. अगर इन्होंने उनको लाइसेंस दिया तभी वो मार्केट पे प्रोडक्ट बेच पाएंगे. एंड दैट इज ओनली सेफ फॉर अस टू कंज्यूम. ओके, देन ओनली इट इज सेफ फॉर अस टू कंज्यूम इट. ओके. एंड वो लाइसेंस नंबर जो है 14 डिजिट्स का रहेगा. The license number will have 14 digits. हर एक FBO means जो फूड बिजनेस ऑपरेटर है, यहाँ पे दिख रहा है बोर्ड, फूड बिजनेस ऑपरेटर, उनको ये FSSAI लाइसेंस लेना है. ओके, दे हैव टू
license. They have to take it. Clear? Yes, Sadhana ji has typed in the chat box ki manufacturing date. Yes, very good, Sadhana. We have to even check the manufacturing date. Yes. Okay. Okay. So this is the first thing what you will look at the behind key, whether it is certified by an FSSAI license. Is it got? Clear? Okay. ये FSSAI क्या करती है? क्या करती है कि क्या ये जो FBO है, FBO कौन, यानी कि जो फूड बिजनेस ऑपरेटर है, वो क्या इनका जो सर्टेन रूल्स करता है, क्या वो फॉलो रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं क्या, करके ये इंश्योर करती है. कौन इंश्योर करती है? FSSAI, जो FSS जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट है उसके मुताबिक ये चल रहे हैं क्या. Okay, that's what they will, food regulations are they following. They will inspect. Inspect यानी कि क्या, ये जब अगर कुछ खोल रहे हैं अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या कुछ भी खोल रहे हैं, दिस FBO यानी कि फूड बिजनेस ऑपरेटर, उनके प्रेमिसेस को इंस्पेक्ट करेंगे. इंस्पेक्ट यानी कि हाँ, जाके देखेंगे फर्स्ट. सो दे विल इंस्पेक्ट द फूड प्रेमिसेस, इनके फूड प्रेमिसेस को इंस्पेक्ट करेंगे, फिर ही ग्रांट करेंगे. क्या ग्रांट करेंगे? ये जो FSSAI लाइसेंस जो है उसके बाद ही उनको मिलेगा. ऐसे ही लाइसेंस नहीं मिल जाता है. तो फूड इंस्पेक्टर रहेगा, वो फूड इंस्पेक्टर आके प्रेमिसेस को इंस्पेक्ट करेगा, उसके बाद में ही उनको वो लाइसेंस मिलता है जो कि 14 डिजिट का है. और उन FSSAI का लोगो जो होता है, लोगो के साथ वो 14 डिजिट्स उनको उनके पैकेट में प्रिंट करना पड़ेगा. ओके, ऑलराइट, दिस इज क्लियर? एनी डाउट? फूड रेगुलेशंस मींस हर एक ये क्या अलग होता है कि इतना ही कलर ऐड करना है, इतना ही जो वो बहुत इन डेप्थ हो जाएगा. जैसे कि एक प्रोडक्ट है तो उसमें इतना ही शुगर होना चाहिए, इतना ही कलर ऐड कर सकते हो, इतना ही सॉल्ट कंटेंट ऐड कर सकते हो. और आप लोग जैसे कि अभी बेकिंग सोडा करके नाम है, मान लीजिए मैं अभी ये बोर्ड रख करके बताती हूँ. अभी हम लोग को कॉमनली क्या है, बेकिंग सोडा करके ही मालूम है. बेकिंग सोडा क्या है हम सब आम आदमी को मालूम है, मगर इसका जो दूसरा नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है. मान लीजिए पैकेज के पीछे ये लिखा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो आप क्या वो प्रोडक्ट लोगे? आपको मालूम नहीं है ये क्या चीज है, तो आपको ऐसा लगेगा ये तो कुछ केमिकल है, ये प्रोडक्ट नहीं लेंगे. सपोजिंग आप लोग देख के लेने वाले टाइप के हो तो आप बोलोगे नहीं. तो कॉमन आदमी को समझ में आने जैसा पीछे का इंग्रेडिएंट्स रहना चाहिए. ऐसे सब कुछ छोटे छोटे रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं. ओके तो वो जो FBO है, जो फूड प्रोसेसर जो बिजनेस करता है, जो FBO है वो पूरा रेगुलेशंस को गो थ्रू करके ही वो लाइसेंस को अप्लाई करेगा. अंडरस्टूड? Hidden sugar, all that they should know. Clear? Preeti ji, food regulation now it's clear? Yes, right. Now let's go to next. So now what we came to know is the first one you will check for your FSSAI license. Right. Then you will see. Then you will see, and this is mandatory. Okay, mandatory माने क्या? Compulsory है. ये जो FSSAI लाइसेंस है वो कंपलसरी है, मैंडेटरी है. एक अगर उनको फूड बिजनेस कैरी कर रहे हैं तो फूड बिजनेस कर रहे हैं तो वो एक मैंडेटरी चीज है. ऐसा नहीं कि फिर अगर नहीं लेते हैं तो अगर
इनके इंस्पेक्टर आके वहां पे आ गए तो वो कंपनी सीज कर सकते हैं। बहुत लोग ऐसे कर रहे हैं कि लाइसेंस लिए बिना बिजनेस कर रहे हैं, मगर उनको बहुत बड़ा पेनाल्टी भरना पड़ता है या घूस देना पड़ेगा, वो मुझे मालूम नहीं है, तो इंडिविजुअल के ऊपर है। मगर जो है मैंडेटरी होता है, अगर आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हो तो ये लाइसेंस लेके शुरू कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट? ओके, नेक्स्ट you have to see the best before और use by, या तो आपको ऐसे लिखा रहेगा मैन MFG, इसका मतलब है मैन्युफैक्चरिंग डेट, और एक्सपायरी EX करके एक्सपायरी डेट ऐसा लिखा रहेगा। और ये MFG क्या है? मैन्युफैक्चरिंग डेट। और ये EX डेट क्या होता है? एक्सपायरी डेट। ओके, अभी ये क्या है, किसी किसी में आप देखोगे मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट नहीं है, यू विल सी दैट इट वॉन्ट बी देयर, बेस्ट बिफोर एंड यूज बाय ही रहेगा। तो उसका क्या डिफरेंस है बेस्ट बिफोर और यूज बाय? तो लेट्स सी दैट नाउ। एनीवन कैन गेस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस्ट बिफोर एंड यूज बाय? कैन यू टेल मी? यस, एवरी कंपनी को मार्क लेना इंपॉर्टेंट है। यस यस, मार्क यानी कि सर्टिफाइड, मार्क लेना के बदले यू कैन से दे हैव टू बी सर्टिफाइड, सर्टिफाइड बाय एन FSSAI। ओके, मार्क लेना नहीं बोलते। बेबी शाह जी बोल रहे हैं 3 days, कैसे मालूम? इधर कुछ लिखा ही नहीं है ना 3 days या क्या है, क्या डिफरेंस है? हाँ, प्रीति जी बोल रहे हैं मींस प्रोडक्ट का यूज किया टाइमिंग बोल रहे हैं, बराबर, मगर दोनों में वही मीनिंग बता रहे हैं ना, इसमें उसमें क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस इज व्हाट आई एम आस्किंग। बेस्ट बिफोर और यूज बाय, बेस्ट बिफोर और यूज बाय। अभी मान लीजिए मैं एक तारीख दे रही हूँ, बेस्ट बिफोर 3/4/2000, आई मीन यहाँ पर 1 बोल रही हूँ, ओके 4 ही बता रही हूँ, ओके यही तारीख यहाँ पे दे रही हूँ। इसका मतलब है बेस्ट बिफोर, इसका मतलब 1 महीने, प्लीज टाइप इन इंग्लिश नो प्रीति, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? 1 में काम कल का डेट होता है, एक्सपायरी डेट के बाद 3 months नहीं नहीं, ओके लेट्स नॉट कंफ्यूज, लेट्स बेस्ट बिफोर यानी कि ये तारीख से पहले आप यूज करें तो अच्छा है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बाद यूज नहीं कर सकते आप, इसका मतलब ये नहीं कि 3 तारीख के बाद आप यूज नहीं कर सकते हैं। मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, 3 तारीख के अंदर अभी मैं घर में रोटी बना रही हूँ, मैं बोल रही हूँ आज रात तक खत्म करो तो ठीक है, मगर मैंने ऐसा तो थोड़े ही बोला कि कल रात को अगले दिन नहीं खाना चाहिए। आप सुन के देखोगे रोटी बासी लग रही तो नहीं खाओगे, अगर आप अच्छा लग रहा है और कुछ फंगस वंगस फॉर्म नहीं होता है, विंटर सीजन है तो 2 days भी एक रोटी हमारे घर में चलती है, तो अगले दिन हम उसका ही कुछ तो बना देते हैं, चूरी बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, करेक्ट? सो बेस्ट बिफोर का मतलब है कि इस तारीख के अंदर यूज करो तो अच्छा है, कि प्रोडक्ट का कुछ भी गारंटी हमको कि स्मेल या टेस्ट या कलर कुछ भी नहीं बदलेगा, मगर उसके बाद भी आप यूज कर सकते हो, मगर वो मेंशन नहीं कर रहे हैं कि कितना तक। आपको ही देखना है कि कोई रैंसिड टेस्ट, रैंसिड माने खराब हुआ टेस्ट आ रहा है क्या प्रोडक्ट में? अगर रैंसिड टेस्ट आ रहा है या स्मेल आ रहा है तो आप उसको कृपया यूज मत कीजिए। हाँ, मैम ने बोल दिया बेस्ट बिफोर है तो यूज कर सकते हैं कर को, उसको 2 महीना रख के 3 महीना रख के यूज मत कीजिएगा। आपको पहचानना है कि वो प्रोडक्ट जो है रैंसिड है कि नहीं है, यानी खराब हुआ है कि नहीं है करके, उसके बाद में आप यूज कर सकते हो। इसका मतलब बहुत लोग ये गलती करते हैं बेस्ट बिफोर देख के, कि यानी कि उसके अंदर वो क्या बोल रहे हैं कि इसके अंदर यूज किया तो अच्छा है, नहीं तो उसके बाद ऐसा नहीं बोल रहे कि एक्सपायर हो गया है। मगर यहाँ पे देखिए ये बाई जो वर्ड है और एक्सपायरी डेट डाला हुआ है, तो पक्का आपको इस तारीख के बाद यूज नहीं करना है।
Okay, you got the difference? Yes. Any doubts in this? I have given you an example of what we make in the house also, roti or something. कि कोई इमली की भाजी बना दिया या कुछ अचार है या क्या है हमारे घर में हम बनाते हैं, 6 महीना तक चलता है, कभी कभी 1 साल चलता है, 1 year 6 months and all that. बट अगर आप बॉटल लोगे, बाहर का पिकल का बॉटल लोगे, आप पिकल यानी कि अचार का बॉटल लोगे, तो उसमें ऐसा लिखा रहेगा बेस्ट बिफोर, यानी कि ये तारीख के पहले यूज किया तो ठीक है, मगर उसके बाद भी अगर आपका अचार खराब नहीं हुआ तो आप यूज कर सकते हो ना. क्लियर? यस. बट अगर अचार में ऐसा दिखा है एक्सपायरी डेट और यूज बाय लिखा है तो आप यूज नहीं करोगे. Is it clear between these two? So a lot of people have confusion that when to what do I do best before लिखा है तो मैं क्या करूं करके. Yes, Preeti says thumbs up. Let's go to the next. और दूसरी बात जो हम लोग बहुत लोग नहीं देखते हैं कि वहां पर ये तारीख लिखने के बाद भी, समझो यहाँ पे ऐसा लिखा है, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट लिखा है. मैन्युफैक्चरिंग डेट यहाँ 1 लिखा है और यहाँ पे 3 लिखा है मान लीजिए. ओके, एक्सपायरी डेट. तो यहाँ पर लिखने के बाद भी नीचे लिखा रहेगा यूज विद इन, सॉरी, यूज आफ्टर ओपनिंग, रेफ्रिजरेट. ओके, ऐसा करके लिखा रहेगा. तो आपको उसके मतलब क्या, आपको फ्रिज में रखना है ओपन करने के बाद. ओके, जैसे कि ऑलिव्स है, ऐसे सबको जो बॉटल में आते हैं फूड, उसको रेफ्रिजरेट करना पड़ता है. या कोई जूस है आप लेते हो तो उसको इतने घंटे के अंदर कंज्यूम करना है. कभी कभी देखिए यूज विद इन 24 hours एट ओपनिंग, ऐसा लिखा रहेगा कि 24 घंटे के अंदर उसको यूज करो. जैसे कि कोई कोई कैन जूस सब आता है तो ऐसे आप खोलोगे उसको तो तुरंत 24 घंटे के अंदर यूज करना है. नेक्स्ट क्या लिखा रहेगा? आफ्टर ओपनिंग कीप इट इन एयरटाइट कंटेनर. So it will be written that after opening आपको एयरटाइट कंटेनर, यानी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एयरटाइट कंटेनर, यानी कि बंद डब्बे में रखना है. अभी आप चिप्स ले रहे हो, आप या ऐसे कुछ अपना सूजी ले रहे हो, रवा ले रहे हो या वीट ले रहे हो, तो क्या है उसको खुला रखेंगे तो कीड़े पड़ जाएंगे ना उसमें. सो यू हैव टू स्टोर इट ड्यू द मॉइस्ट. कीड़े क्यों पड़ेंगे? क्योंकि अगर उसमें मॉइस्ट होता है, मॉइस्ट यानी कि गीलापन, अगर उसमें मॉइस्चर चला गया तो वो खराब होने की ज्यादा संभावना है ना. सो यू इट मे गेट स्पॉइल्ड. तब वो ये लागू नहीं होगा ना. उसने तीन एक्सपायरी डेट यानी कि क्या है, शेल्फ लाइफ, 3 महीने की शेल्फ लाइफ दी है. शेल्फ लाइफ 3 महीने की शेल्फ लाइफ दी है, मगर हम लोग अगर उसका बराबर स्टोरेज नहीं करेंगे तो वो जल्दी खराब हो जाएगी. राइट? एनी फूड प्रोडक्ट मैक्सिमम एक्सपायरी डेट क्या होता है, ऐसा कोई ऐसा नहीं है, हर एक प्रोडक्ट अलग होता है बेटा. 3 months 6 months, मसाला सब है तो 6 महीना लिखा रहता है. कभी कभी डेट नहीं मेंशन करके बेस्ट बिफोर 6 months करके लिख देते हैं. कभी 3 months होता है, जैसे मैंने बोला अचार सब 12 months ऐसे देते हैं. सो ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं होता है. तो प्रोडक्ट से हिसाब से वही मैंने बोला, वो FSSAI रेगुलेशंस जो है उसमें लिखा रहता है कि कितना क्या कैसे एक्सपायरी हो सकता है या कितना क्या आप ऐड कर सकते हो, कैसे आपको फूड लेबल्स बनाना है. वो सब रेगुलेशंस आपको इन डेप्थ, आपको इच्छा है तो आप जाके पढ़ सकते हो और जानकारी ले सकते हो. ऑल राइट, shall we go to the next? Now, before I proceed further, I will share you the screen and show you what to say in depth.
I'll share you my screen. Is my screen visible? यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे लेके रखा है, ये देखिए। उसके बाद में आपको पीछे के यहाँ पे जाके देखना है कवर में कि कैसे न्यूट्रिशनल फैक्ट्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट कॉम्पोजिशन पर 100 ग्राम व्हेन पैक्ड, 100 ग्राम्स में कितना अप्रोक्सीमेट है ये फैक्ट्स ये दिया गया है। तो इसमें आपका क्या एनर्जी, प्रोटीन, कार्बो, इसमें मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देते हैं। हम इतना डेप्थ नहीं जाएंगे कि मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या है। वी विल जस्ट, इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज गो थ्रू इट। अभी यहाँ पे सैचुरेटेड फैट्स, पॉलीसैचुरेटेड, ये सब हमारे इसके लिए अच्छा है शरीर के लिए। अगर आपके यहाँ पे ऐसे मैंने ट्रांस फैट और अनसैचुरेटेड फैट ऐसे सब आ रहा है, तो आप लोग को वो प्रोडक्ट अवॉइड करना है। ट्रांस फैट, अनसैचुरेटेड फैट आपके यहाँ पे आएगा तो यू शुड अवॉइड इट। आई मीन सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट एंड सैचुरेटेड फैट। तो यहाँ पर क्या लिखा है, अनसैचुरेटेड फैट लिखा है, सैचुरेटेड फैट्स लिखा है। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको ये लेना है कि नहीं है करके। ये पॉली अनसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड सब सही है, मगर ये जो सैचुरेटेड फैट एसिड है कितना है, देखिए 12 ग्राम्स है यहाँ पर। तो यू हैव टू डिसाइड। ये जो विटामिन ये सभी माइक्रो है और ये सब मैक्रो है, कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी, प्रोटीन सब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। सो वी विल नॉट गो इन डेप्थ। ओके, सो इसके बाद में यहाँ पे देखिए, ये राजगीरा चिक्की करके है, इसका भी मैंने यहाँ पे लेके रखा। देखिए पैक्ड बैच, यहाँ पे देखिए इंग्रेडिएंट्स दिख रहा है। देखियो वहां पे क्या है, राजगीरा, पीनट, कार्डमम और उसके ब्रैकेट में हिंदी में समझ आने के लिए इलायची करके लिखा है। जैगरी, शुगर, ग्लूकोज ये सब डाला हुआ है उसमें करके बता रहे हैं। सो हम उस इंग्रेडिएंट्स को देख के हमको लेना है या नहीं करके हम बता सकते, हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पैक्ड ऑन बोल के डेट देके बेस्ट बिफोर 30 डेज करके लिखा है। सो बेस्ट बिफोर जो मैंने बोला था, 30 डेज के अंदर खाओगे तो अच्छा है, नहीं तो वरना ऐसा नहीं कि वो एक्सपायर है करके आप डिसाइड कर सकते हो। आपके यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे बैच नंबर करके दिया होता है बहुत बार। ये बैच नंबर क्यों देते हैं कि वो कौन सा बैच में किसके, हर एक बैच के लिए एक एक मैनेजर डालते हैं, वहां कहाँ से वो प्रोडक्ट आया और कैसे कितना, ऐसे करके हर एक बैच में एक एक का डिटेल्स रहेगा। अगर आपको ये सपोजिंग आपने लिया और इसमें आपको कुछ कंप्लेन है, तो आप ये बैच नंबर रख के आप है ना आपका ईमेल भेज सकते हो या आप उस पर कंप्लेन कर सकते हो। तो वो लोग कैसे ट्रैक करेंगे, ये बैच नंबर रख के ही ट्रैक करेंगे। सो दे विल ट्रैक इट बाय यूजिंग द बैच नंबर, और उसको बैच नंबर, लॉट नंबर ऐसे भी बताते हैं। ओके, सो यू कैन मेक अ कंप्लेन। मान लीजिए उसमें कुछ कीड़ा निकल आया या कुछ भी आ गया, तो आप उसका फोटो खींच के उस बैच नंबर लिख के आपका फिर आप उसको कहाँ से लिया सब डिटेल्स भेज के आप फोटो भेजते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं आप। सो पैक्ड ऑन, यहाँ भी देखिए क्या लिखा है, बेस्ट बिफोर 9 मंथ्स करके लिखा है। यहाँ पे देखिए पैक्ड ऑन बेस्ट बिफोर 9 मंथ्स फ्रॉम पैकिंग, व्हेन केप्ट इन करके कंडीशन दिया है, देखिए यहाँ पर। ओके, राइट। उसके बाद में व्हेन केप्ट इन फ्रॉम अवे फ्रॉम हीट एंड लाइट करके दिया है। ओके, यस, नेक्स्ट। ऐसे कैंस में ऊपर ऐसे लिखा रहता है, ये देखिए MFGEXP, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट। ये 4/9/14 को मैन्युफैक्चर हुआ था, 4/9/17 को इसका एक्सपायरी है। ओके,
तो इसमें भी ऐसे ही आपको पूरा डिटेल दिया है कि विटामिन कितना है, कैल्शियम कितना है। सो आप लोग ऐसे देख के अपना फूड जो है आप बाई कर सकते हो, राइट। एनी डाउट्स इन दिस? जो अभी मैंने स्क्रीन शेयर किया, एनी डाउट इन दैट? ओके, राइट। So now, what is the nutrition fact? We saw what is the nutrition facts. So your homework will be, आप घर में जाके आपके घर में जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो लेके एक 2-3 प्रोडक्ट्स का न्यूट्रिशन फैक्ट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, या तो बेस्ट बिफोर, और फिर उसमें क्या बेस्ट बिफोर, और फिर क्या उसमें लिखा हुआ है कि जैसे मैंने लिया रेफ्रिजरेट करो या फिर उसको एयर टाइट कंटेनर में रखो, ऐसे क्या लिखा हुआ है। अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो प्रोडक्ट का होमवर्क आपको रिसर्च करके मुझे भेजना है। ओके, एनी डाउट्स इन द होमवर्क? बेस्ट बिफोर और मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या बोलता है उसका? शेल्फ लाइफ, कि वो प्रोडक्ट कितना देर चलेगा करके हमको पता रह जाए। और ये जो मैंने अभी बताया था, बैच नंबर, लॉट नंबर या कोड नंबर, ये कोई भी एक लिखा रहता है, बैच नंबर, लॉट नंबर या कोड नंबर करके लिखा रहता है। ओके, any doubts? So what you can do with this, you can make a complaint if anything happens when you consume. आप कंज्यूम करने के बाद या आपने जब प्रोडक्ट में कुछ देख लिया, कुछ कॉकरोच था या कुछ भी था, आप उसके ऊपर कंप्लेन कर सकते हो। तो बेस्ट बिफोर क्या है कि प्रोडक्ट का फ्रेशनेस जो है, आपको इतना टाइम तक फ्रेशनेस, टेस्ट, वो सब इतना टाइम, जितना तारीख उन्होंने दिया है उतना तक कुछ नहीं होगा, उसके बाद पता नहीं है। ओके, एनी डाउट्स? और दूसरा आपको इंपॉर्टेंट देखना है कि एलर्जेंस, एलर्जिक रिएक्शन भी एक कंपनी को प्रोडक्ट के पीछे मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, फूड लेबल्स में मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिस्ट ऑफ एलर्जन इंफॉर्मेशंस, जैसे कि बहुत लोग को ग्लूटेन का एलर्जी रहता है, तो ग्लूटेन का एलर्जी रहता है तो उसमें मेंशन किया रहता है कि अब ये इस रवा में लिखा होगा, यहाँ पे रवा में लिखा होगा, देखिए मैं दिखाती हूँ कि इसमें ग्लूटेन है, आपको ये करके यहाँ पर कहीं तो मैंने पढ़ा था हाँ यहाँ पे लिखा है, देखिए कंटेन्स व्हीट ग्लूटेन करके यहाँ पे लिखा है, देखिए दिख रहा है आपको? हाँ यहाँ पर लिखा है, देखिए कंटेन्स व्हीट ग्लूटेन करके लिखा है, और स्टोरेज भी दिया है, स्टोर अंडर कूल एंड ड्राई कंडीशंस आफ्टर ओपनिंग द पैक करके ऐसा लिखा है। और यहाँ पर देखिए आपका एक्सपायरी डेट, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा है 1/11/3/24, प्राइस लिखा है 48 रुपीज, और यहाँ पर देखिए एक्सपायरी डेट लिखा है 10/6/24। ओके, यस। देखिए और एक भी है, मैंने ऐसे पैकेट्स लेके रखा है। यहाँ पे कैसे कभी भी ऐसे कोई प्रोडक्ट रहता है जैसे रेडी टू ईट है, तो वहां पे आपको कुकिंग डायरेक्शंस भी दिया जाता है कि कैसे इसको बना सकते हो करके, कैसे कुक कर सकते हो। कि यहाँ पे देखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इंस्टेंट गुलाब जामुन, रसगुल्ला और ऐसे नूडल्स, ऐसे सब पैक्ड फूड में आपको। और यहाँ पे देखिए ये जो ग्रीन कलर लेबल है, ये ग्रीन डॉट दिख रहा है आपको, यहाँ देखिए ग्रीन डॉट दिख रहा है, तो ये ग्रीन डॉट है तो वो वेजिटेरियन है। ओके, और रेड डॉट रहेगा तो वो नॉन वेजिटेरियन है। ओके, ऐसे जो ग्रीन डॉट देख रहे हो तो वो वेजिटेरियन है, और रेड देखोगे नॉन। अभी कभी कभी कोई अंडा खाता है तो वो भी वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन में आएगा रेड, अगर कभी कभी ब्राउन कलर में रहता है, ब्राउन कलर की अंडा है उसमें दिखाने के लिए। ओके, तो ये भी आपको, अगर आप नॉन वेज नहीं खाते हो तो आप ये भी देख के लो कि वो वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है, आप देख के ले सकते हो।
ये ग्रीन सिंबल के साथ। और कुछ आपको जानना है इसमें? तो हम क्या करेंगे? और दूसरी बात, यहाँ फ्रंट में जो भी लिखते हैं वो मार्केटिंग गिमिक्स के लिए शुगर फ्री, ऑर्गेनिक, ऐसे सब शब्दों का उपयोग किया जाता है, मगर आपको उसके ऊपर नहीं जाना है। पीछे मुड़ के आपको देखना है कि यहाँ इंग्रेडिएंट्स में क्या दिया हुआ है, वहां पे पूरा सही तरीके से अंदर का कंटेंट में क्या है करके आपको मालूम पड़ेगा। तो नेवर गो ऑन द फ्रंट पैकेजिंग में जो क्या लिखा है उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। उसमें ऐसे बहुत सारे शब्द लिखा रहता है, जहां पर आपको मैं बताती हूँ कैसे कैसे शब्द लिखे रहते हैं, फिर आप लोग डिसाइड करो। हार्ट हेल्थी, ऐसे हार्ट हेल्थी करके लिखा रहेगा, ऑल नेचुरल। तो ये सब क्या है? मार्केटिंग के लिए ऐसे वर्ड्स उपयोग किए जाते हैं, नो एडेड शुगर। मगर पीछे आप देखोगे तो वहां पर आपके जो फूड लेबल्स में है वहां पर पूरा मेंशन किया रहेगा कि इतना। और दूसरी बात, हम लोग शुगर नहीं है करके हम ले लेते हैं, मगर हम ऐसे वर्ड्स जो हैं, फ्रक्टोज, ऐसे सुक्रोज, ये तो भी शुगर ही है ना। मगर हम लोग शुगर, नो शुगर, फ्री शुगर ऐसा लिखा रहेगा, मगर पीछे के इंग्रेडिएंट्स में ऐसा लिखा रहेगा, फ्रक्टोस है, सुक्रोस है, माल्टोस है, ऐसे सब लिखा रहेगा। ओके, सो आपको ऐसे सब वर्ड्स पर, अभी जैसे ग्लूकोस है, वो भी हम उसमें भी तो भी शुगर ही है ना। तो आपको ये वर्ड्स पर ध्यान देना है। आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो आप और भी जाके जाके पढ़ सकते हो, मगर जो आपको इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये फूड साइंस का सब्जेक्ट नहीं है, तो आई विल गिव यू ओनली अ लिटिल बिट ऑफ इट। तो आपको ऐसे वर्ड्स पे सावधान रहना है कि ये जो है ऐसे आगे लिखा है, उसमें नो एडेड शुगर है, चलो मैं ले लेती हूँ, शुगर एडेड नहीं है, मगर क्या उसमें फ्रक्टोस है, सुक्रोस है, माल्टोस है, आपको देखना है। ओके, क्योंकि ये सब जो चीज है अपना ब्लड शुगर को स्पाइक कर सकता है, स्पाइक कर सकता है ना, अपना ब्लड शुगर को ऊपर उठा सकता है। ओके, क्लियर? कि आपने देखा होगा, ऐसे भी होगा कि फैट में, जैसे मैंने अभी बताया था, फैट्स में आपको, क्या फैक्ट लिखा रहेगा कि वो जो है यहाँ पर ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट्स, ये सब जो है हमारे इसके लिए हार्मफुल रहते हैं। मगर आगे का पैकेट में हार्ट हेल्थी ऐसा लिखा रहेगा, हार्ट हेल्थी करके लिखा रहेगा, तो आपको लगेगा कि इसमें बिल्कुल फैट नहीं है करके, मगर यहाँ पर ऐसे लिखे रहेंगे शब्द जो ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट, तो ये तो हमारे लिए हानिकारक है ना। ओके, सो कैसे टाइप का फैट्स हमको लेना चाहिए? जैसे कि अनसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड, ऐसे सब फैट्स जो है हमको हमारे हेल्थ को सपोर्ट करता है, तो ऐसे फैट्स आप लीजिए। तो आपको इसके ऊपर अगर आपको हेल्थ कोई प्रॉब्लम है तो यू हैव टू be very careful of what you are giving your family, what you are giving your children. You have to be very careful. Okay. Anything else which I missed out? Yes, I have told you, I think, enough information. Anything else which I have missed out? दूसरा और एक चाहिए तो आपको बोल देती हूँ, ये जो सोडियम नाइट्रेट है, ये सोडियम नाइट्रेट जो है वो एक प्रिजर्वेटिव है। प्रिजर्वेटिव माने हम कैसे आचार में सब हम लोग वो सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, या कभी कभी नींबू डालते हैं इंस्टेंट। एक हफ्ते का आचार है तो अदरक में नींबू डाल के बना दिया, सो वो सब एक विनीगर डालते हैं, विनीगर सब एक प्रिजर्वेटर है। तो वैसे ये सोडियम नाइट्रेट जो है एक प्रिजर्वेटर है जो कि पैकेज फूड में रहता है। क्यों क्या रहता है? क्योंकि कोई बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो, उसको अवॉइड करने के लिए हमको ये डाला होता है, ये जो सोडियम नाइट्रेट है। तो ये जो भी है बहुत मात्रा में डाला हुआ है, तो वो भी हमको अवॉइड करना चाहिए लेने के लिए। तो मालूम वो नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है, उसमें प्रिजर्वेटिव है, हमको मालूम है, तो ये भी हमको अवॉइड करना है, ऐसा आपको ऐसा पहचानना है। All right, so that's all for today. So what you will do is you will go and do the homework
and see the product expiry like this behind what it is written expiry date. यहाँ पे देखिए no fork inside, एक इंस्ट्रक्शन दिया है कि अंदर जो है फोक नहीं है, आपको ये अपना स्पून या कुछ लेके खाना है, कि ऐसा नहीं कि ये रेडीमेड है तो अंदर फोक मिलेगा, नहीं है करके बता रहे हैं, तो ऐसा है। यहाँ पे देखिए बैच नंबर दिया है। ओके, ऑल राइट। I hope it is clear. Any doubts, you can unmute and ask me if you want to. Yes. यही होता है कॉस्मेटिक। आप लोग कॉस्मेटिक लेने जाओगे तो आपको वो भी डिफरेंस चाहिए, तो मैं बता देती हूँ। नहीं दिख रहा है बोर्ड। यहाँ पे हाउस होल्ड यानी कि प्रोविजंस आप जो भी खरीद रहे हो, यहाँ पे कॉस्मेटिक, ओके, और यहाँ पे मेडिकेशन जो में ओटीसी मेडिकेशन है, ओके। तो यहाँ पर आप सब में हमको क्या है, हमको ये जो प्रोडक्ट क्या क्या करता है, इससे क्या आपका स्किन को ग्लो करता है, व्हाट डज द प्रोडक्ट डू, व्हाट डज प्रोडक्ट, ये इंफॉर्मेशन दिया जाता है कॉस्मेटिक में कि वो आपके स्किन को फेयर करेगा या सॉफ्टन करेगा या आपके पिंपल्स को निकालेगा, या व्हाट डज द प्रोडक्ट एग्जैक्टली डज करके आपको इंफॉर्मेशन देगा। और यहाँ पे हाउस होल्ड ये क्लीनिंग यानी कि आपका क्लीनिंग सॉल्यूशंस जो है, क्लीनिंग सॉल्यूशन यानी कि जो हम लोग लेते हैं लाइजॉल, जो एसिड है, जो हार्पिक है, वैसे टाइप का चीज लेते हैं क्लीनिंग सॉल्यूशन, वहां पर भी आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाल के बनाते हैं, इस सब में इंग्रेडिएंट्स क्या है डालेंगे, सब में इंग्रेडिएंट्स क्या है, इंग्रेडिएंट्स यानी किससे बना है, सब में डालते हैं कि ये किससे बना हुआ है। और उसके बाद में यहाँ पर क्या है, ड्रग्स का क्या फैक्ट्स है कि इससे क्या हो सकता है, ऐसे फैक्ट्स देंगे। और यहाँ पर मेन हैजार्ड, हैजार्ड माने क्या है, ये अगर आपके आंख में लगेगा या कांटेक्ट में आएगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है करके यहाँ पर हैजार्ड्स का बताएंगे। प्रिवेंट कांटेक्ट विथ आईज ऐसा करके लिख सकते हैं, यहाँ पर, यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, प्रिवेंट कांटेक्ट विथ आइस। तो ये सब देख के आप प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए कि वो क्या कुछ ये सब ऐसा हैजार्ड बताया हुआ है क्या, अगर एसिड ले रहे हो तो यहाँ पे एसिड बताया हुआ है क्या, देखो यहाँ पे, यहाँ पर भी आपको यहाँ पे कोई एलर्जिक है क्या आपको, तो टेस्ट पैच, जैसे कि ब्लीचिंग करते हैं तो बोलेंगे पहले आपके हाथ में जरा टेस्ट करके देखो, आपको कोई रिएक्शन नहीं होता है तो फेस में टेस्ट कीजिए, ऐसे करके आपको इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा। तो प्लीज मेक श्योर यू फॉलो द labels and read everything before using any product, okay, like this over here कि यहाँ पर क्रिटिकल डोसेज या डोसेज जो है अगर इतना ही देना है, अगर उससे ज्यादा दिया तो आपको मेडिकली रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है वहां पर दिया रहेगा, ओके। सो कोई भी प्रोडक्ट अगर इट्स नॉट ओनली प्रोविजन, वेदर इट्स कॉस्मेटिक और हाउस होल्ड प्रोडक्ट और एनी मेडिकल प्रोडक्ट, ओटीसी मेडिकेशन, व्हाट एवर यू आर टेकिंग, एवरीथिंग रीड द लेबल्स एंड गेट योरसेल्फ मोर नॉलेज। अगर आप ब्लेंड लोगे ना तो आपको वो कैसे ब्लेंड करके, जैसे मैंने अभी सिलेबल सिखाया उसको कैसे ब्लेंड करके पढ़ते हैं, कैसे हम उसको जोड़ के पढ़े, तो सब में आप नॉलेज ले सकते हो, क्लियर। सो एंजॉय विथ योर लेबल्स, आप लोग फूड लेबल्स पढ़िए और ज्ञान लीजिए, आप सेल्फ नॉलेज कर सकते हो। ऑल राइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी। यस, शैम्पू बेबी शाहजी बता रहे हैं, शैम्पू अमेजिंग मैम, बेबी शाहजी बता रहे हैं, वेरी गुड, थैंक यू बेबी शाहजी फॉर द कॉम्प्लीमेंट, यस गुड। एनीथिंग एल्स? बेस्ट नॉलेज बेबी शाहजी बता रहे हैं, वेरी गुड, थैंक यू बेबी शाहजी, आई एम हैप्पी यू आर गेनिंग समथिंग। दैट्स ऑल, नो डाउट्स, यू आर नॉट एबल टू अनम्यूट, अनम्यूट कीजिए। कार्तिक सर, आर दे अलाउड टू अनम्यूट? अंजलि सी, आर यू, अंजलि सोनी जी अनम्यूट कर पा रहे हो तो बताइए चैट में।
या सेशन को खत्म करें? Yes, ma'am. All information amazing, ma'am. Wow, जो मैं happy. Thank you, Yes, Devika ma'am. ji. Thank you so Yes. much. That was really nice of you. Very good. Thank you, ma'am. You made my day. You Yes. made my day. That means मेरा दिन बन गया. कितना अच्छा सा बढ़िया English बोला. Very good. Next, anyone else wants to say something? Nothing? That's all? Shall we wind up? Shall we meet tomorrow? And Yes, I received your homework, Anjali, Soni ji, Sadhana ji and all. There are still some mistakes. I will correct it and send you all. Okay? Yes, Okay, ma'am. happy Eid to all of you also. I guess Anjali Soni wanted leave today for Eid. She had sent a message in the group. Yes. क्यों बिरयानी खिला रहे हो सबको अंजलि सोनी जी? All right, take care. जय विद्याशक्ति, जय भारत, जय हिंद. Thank you, girls.